السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی کہ ایک بار پھر آج ہماری محفل میں موجود ہیں ہماری بزرگ خواتین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا حال پتہ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ بیٹے، آپ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر۔ بہت خوشی ہوئی اتنی دیر کے بعد آپ سے ملے ہیں تو ماشاءاللہ۔ شو تو دیکھتے رہتے ہیں پروگرام میں، اب بڑی بڑی اچھی باتیں کرتے ہو، اور ایسی باتیں بیٹے جو اب ہم بھول گئے ہیں۔ ایسے اکثر ہوتا ہے نا کہ بندہ گھر سے نکلتا ہے کسی منزل کی طرف تو راستے میں کچھ سوچتا سوچتا کہیں اور نکل جاتا ہے۔ تو یہی ہماری زندگیوں میں بھی ہو رہا ہے۔ ہم لوگ کوئی برا معاشرہ نہیں ہے، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہماری قوم بڑی اچھی ہے، ہماری خواتین، ہمارے مرد بہت اچھے ہیں۔ اصل میں ہم دوسروں کو دیکھ کے کچھ اور سوچتے سوچتے کہیں اور نکل گئے۔ روایات بدل گئی ہیں، قدریں بدل گئی ہیں۔ ہاں وہی نا دیکھیں، روایات اور قدریں جو ہیں وہی جو بزرگوں کی روایات ہوتی تھی، اصل منزل تو وہی ہوتی تھی نا۔ اب دیکھیں نا، آج سے اگر چند سال پہلے آنٹی دیکھیں، کوئی 20-25 سال پہلے دیکھیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو خواتین ہوتی تھیں وہ پورے گھر کو اپنا گھر سمجھتی تھیں۔ بے شک بے شک۔ وہ اس میں وہ کھانے نہیں بانٹا کرتی تھیں کہ میرا شوہر، میرے بچے، میرا جہیز، میری چیزیں۔ جبکہ آج آپ دیکھیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم موجود بھی ہے تو اس میں ہر خاتون نے اپنے اپنے خانے بنائے ہوئے ہیں۔ میرا شوہر، میرے بچے، میری چیزیں، میرا جہیز، میرے کام، میرے فرائض۔ جنید بچیاں جدوں دے کھانے بنے نے ادوں دے کھانے خراب بھی تے ہو گئے نے نا۔ ہاں بس کچھ ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ کچھ تو ہم نے بیٹے چھوڑ دی اپنی روایت۔ خواہشات بہت بڑھ گئی ہیں، لالچ بہت بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ۔ لالچ تو اب اتنی ہے کہ جو ہے بس وہ سب میرا ہی ہے۔ ایسا نہیں تھا بیٹا، اپنی چیز جو ہے اس میں سب کو حصے دار سمجھا جاتا، بالکل ایسے تھا۔ اپنے گھر میں سارے افراد کو حصے دار سمجھا جاتا تھا۔ بے شک۔ خاوند کی جو کمائی ہوتی ہے، جو خاوند محنت کر کے لاتا ہے گھر میں، اس کو صرف اپنا ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ گھر پہنچتی تھی تو آلریڈی ذہن میں پلاننگ ہوتی تھی کہ میں نے اس میں فلاں کے ساتھ بھی پیار کرنا ہے، ان پیسوں میں میں نے فلاں کو بھی حصے دار بنانا ہے، اس پیسوں کے ساتھ جو چیزیں آنی ہیں اس میں گھر کے دوسرے افراد بھی حصے دار ہیں۔ بے شک۔ مجھے نہیں یاد کہ ہم کبھی برتنوں سے لڑی ہوں۔ ہم ماشاءاللہ جو جٹھانی اور درانی، ہم میرا خیال ہے دیورانی بھی میری 2 تھی اور ماشاءاللہ 2 ہی میری جٹھانیاں تھیں، تو ساری اکٹھی رہتی تھی اور کبھی یہ نہیں تھا ہم نے فکرہ منہ سے نکالا کہ یہ میرے برتن ہیں۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی جیسے اپنے بچوں کی کرتے تھے اسی طرح فکر جو ہے وہ دوسرے بچوں کی۔ میں صدقے جاؤں بیٹا، میں یہی کہنے لگی تھی تو ہم تو یہ بھی نہیں تھے کہتے کہ یہ میرا بچہ ہے وہ تیرا بچہ ہے۔ تو بیٹے اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا یہ ختم ہوئی ہیں لالچ کی وجہ سے، خواہشات کے بڑھنے کی وجہ سے۔ اب لالچ اتنی بڑھ گئی ہے کہ خاوند جو گھر میں پیسے لے کے آتا ہے اس میں وہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی، وہ لالچ پوری نہیں ہو رہی، تو کسی دوسرے کو اس میں کیوں حصے دار بننے دیں؟ آپ ٹھیک فرما رہی ہیں بہنا، برکت اڑ گئی ہے۔ تو برکت تو پھر اسی وجہ سے اڑتی ہے نا کہ آپ دل کے اندر خواہشات کھوٹ آ گیا دلوں میں، اصل میں خواہشات بھر لیں، رب کو نکال دیں دل میں سے اور اس کی جگہ خواہشات بھر لیں۔ میں تو اب بچیوں کو یہ کہتی ہوں کہ بیٹے آپ نے وہ زندگی کا مزہ دیکھا ہی نہیں ہوا جو ہم نے دیکھا۔ اس میں بہت مزہ تھا، اس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار تھی نا، اس میں بہت مزہ تھا، مل کے کھانے میں بہت مزہ تھا، مل کے زندگی گزارنے میں بہت مزہ تھا۔ پھر ایک اکٹھے جوائنٹ فیملی تو ہوتی تھی، ایک دوسرے کا کام کر کے بڑا خوش ہونا، بلکہ دوسروں کا کام کرنا زیادہ ضروری سمجھتے تھے۔ ساڈے دور چ نہیں سیاں ہوندا پتر کے کپڑے میں دھونے نے تے بھانڈے تو دھونے نے، تے روٹیاں کنے لانیاں نے، ساریاں ایک پیو دیاں نوواں رل مل کے کام کر دیندیاں۔ میں تے پتہ پوری گلی دیاں جواں ویکھنی سا۔
अच्छा, आपकी ये स्पेशलिटी थी जबरदस्त। खुर्शिद तो मोहल्ले में मशहूर थी माई जुआओं वाली। देखो ये जो है ना एक दूसरे के साथ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਬੜਾ ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਂ। नहीं है, मैं लड़ना पिया कर, मैं ते तेनू दस रही हां जो हकीकत हुंदी सी। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ए गुलामा तो नहीं सी ना, वो तो देखो ना, अब ये प्यार से ही कहते थे और ये गुस्सा भी नहीं थी करती। जुनेद बेटा, प्यार का आलम ये था कि अगर मेरा मियाँ कोई चीज ले आया है, चाहे वो मिठाई हो या फ्रूट हो, अपने बच्चे को बाद में देनी और दूसरों के बच्चों को पहले देनी। तुम तो मिठाई उस वक्त देती थी जब रसगुल्ले में से रस खत्म हो जाता था। मेरे हमसायों में बच्ची एक बता रही है, कहती है मेरा खावन लेके आया फ्रूट तो मैंने अपनी जेठानी को दे दिया। तो वो ऐसे मुंह फाड़ के कहती है गला हुआ निकल आया। अब देखो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये नफरत पैदा करती हाँ है। जी। अच्छा सोचना चाहिए, बुरा सोचना शुरू कर दिया है हमने। हमने बेटे आदत डाल ली है दूसरे के लिए बुरा ही सोचना है, दूसरे को बुरा ही समझना है, हाँ। दूसरे को बुरा ही कहना है। बहुत कम ऐसे फिक्रे या लफ्ज निकलते थे मुंह से हाँ जी। कि किसी को कोई बुरा कह रहा है या किसी के मुतल्लिक कोई बुरा सुन रहा है, फौरन रोक देते थे कि ना मैं ना इस तरह की बात ना कर। हाँ हाँ बाबूजी मिल बैठने के बहाने ढूंढती थी, एक दूसरे का हाथ बटा देती थी। हाँ ये भी है, ये भी है। बातों बातों में बेटा हम तो बड़े मुश्किल काम कर लेती थी उस वक्त। ਕੋਠੇ ਲੈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। हाँ ਤੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਹ ਚੋਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਚ। ਤੇ हाँ, किसी एक ने अगर जल्दी फारग हो जाना हांडी रोटी की तरफ से, तो उसने साथ वालों के घर जाके साथ वाली हमसाई का हाथ बटाना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही। या कोई फारग बैठी हुई है तो वो दूसरी जो है वो घर का काम करना चाहती है, उसने कहा ना लाओ अपना बेटा बच्चा मुझे पकड़ा दो, कितने मजे तुम के अपना दिन, काम कर लो। कितने प्यारे दिन। हाँ ये तो एहसास की बात होती थी, एहसास खत्म हो गया है। तो बच्चों को भी पता होता था हमारी माँ ने पकाना, हमने खाना है। अब तो ऑर्डर दे देते हैं, ले आते हैं, पता नहीं क्या। अच्छा बच्चों के दिलों में भी सबके लिए यकसा प्यार होता था, वो सबको ही अपनी माँ समझते थे। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਜਨੇਦ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਂਦਾ ਸੀ। बेटा मुझे अच्छी तरह याद है, हमसायों में हमारे मोहल्ले में 2-3 घर छोड़ के हमारी एक हमसाई थी, वो बेचारी बीमार हो गई और बहुत ज्यादा बीमार हो गई। तो सारे मोहल्ले ने ड्यूटी लगा ली, उनके घर में जाके कोई उनके बच्चों को देख रहा है, कोई उनको देख रहा है, कोई उनकी हांडी रोटी कर रहा है, कोई उनके घर में सफाइयां कर रहा है। सही। तो ये एक दूसरे का हाथ बिठाना सिर्फ घर में ही नहीं था होता, अब तो घरों में नहीं है। मैं आपको यही तो अर्ज करना चाहती हूँ कि अब तो जो इकट्ठे जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है उसमें भी, बल्कि अकेली फैमिली भी अगर रहती है ना तो बहन भाई एक दूसरे को मुंह नहीं लगाते। अभी कोरोना आया है तो हमारा माशरा कैसे खुल के रह गया है। इससे पहले पुराने वक्तों में जब आप लोगों का वक्त था तो टीबी एक नामुराद मर्ज हुआ करता था। ये खुदा न खास्ता किसी घर में किसी औरत को टीबी हो जाती थी तो पूरा मोहल्ला जो है वो उस घर का ख्याल रखता था, वहां पर खाना देना किसी न किसी बहाने, वहां पर कोई ना कोई पहुंचता था। हालांकि बड़ा खौफ था टीबी से। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਵੇਖ ਪੁੱਤ ਜਨੇਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦਰਾੜ ਆਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਸੁਰ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਕਿੰਜ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਖੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, और नेटां ते सुटन लग पे ने लोकां दे घरां। मजे लेते हैं, दूसरे घरों में पैदा होने वाले मसलों पे मजे लेते हैं, चस्का लेते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे एक रिश्तेदार अजीज थे, उनकी बेटी झगड़ के ससुराल से घर आ गई। यकीन मानो जुनैद तुम्हारे अंकल इतने परेशान हो गए, बीमार हो गए, यही सोच सोच के कि उस बच्ची का घर खराब हो गया। मैं उनको समझाऊं आप दुआ करें, आप क्या करते हैं? 2-3 दफा उसके ससुराल उनके कहे बगैर खुद ही चले गए, खुद जाके उनके आगे हाथ जोड़ने शुरू हो गए, उनकी मिन्नतें करने शुरू हो गए कि यार इस तरह ना करो, घर खराब ना करो।
وہ بچی جو ہے وہ ہماری بچی ہے. ਬਾਜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਜਾਣਾ ਘਰ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਆ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕੀ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਭਲਾ महीना पहले भी तुमने मुझे दिखाया था 7 ही बजे हुए थे. पता नहीं चाबी वाली है या सेल वाली है. 7 ਵਜੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 8 ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਖਾਵਨ ਦੀ हाँ वो तो इसलिए पहनती है, मोहब्बत है, अपने शौहर की निशानी है. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ तो बात ये है बेटा कि इन चीजों के फायदे बहुत हैं, नुकसानात नहीं है. ਬਿਲਕੁਲ कोई नुकसान नहीं है इन चीजों का. एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटना, एक दूसरे का ख्याल करना, हाँ जी, अपनी फैमिली में एक दूसरे को देखना, इससे बेटा दुख दर्द तकलीफें कम होती हैं. आप किसी के दुख दर्द में हिस्सेदार बने तो आप अल्लाह ताला आपको दुख दर्द से दूर कर देते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਂਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਫੀਆ ਯਾਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋੜਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਤੇ ਗੋਗੀ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੜਨੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਗੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਗੋਗੀ ਨੂੰ ਲੜੀਆਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ अच्छा वो आंटी ने ये समझा होगा कि शायद मुझे शहद भी लगेगा. नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ हुई. पिछले कुछ अरसे के दौरान इतने पाकिस्तानी अजीजी भाईजान द ग्रेट वहाँ पर बेवकूफ़ बने हैं. उनकी एक पॉलिसी है कि $2.5 लाख दें और वहाँ पे आप कोई जायदाद वगैरह खरीद लें या इन्वेस्ट करें. $2.5 लाख आके दें और आपको फौरी तौर पे वहाँ की जो तुर्क शहरियत है वो दे दी जाएगी. बाज़ मौज़ूआत इतने पेनफुल होते हैं, तकलीफ़ दे होते हैं कि इंसान उन पर मतलब बात करने के लिए आमादा नहीं होता. दिल नहीं चाहता कि इस मौजू पे बात की जाए, लेकिन बात किए बगैर चारा भी नहीं होता. बात करना भी ज़रूरी होता है कि अगर बात ना की गई तो फिर ये हालात जो हैं मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे. हम कई दफ़ा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि दुनिया में अगर कोई एक मुल्क है, रिपीटेडली मैं कहता हूँ और दोहरा रहा हूँ अपना जुमला, कि दुनिया में कोई एक मुल्क है जहाँ पे पाकिस्तानी की पाकिस्तानी होने की वजह से इज्जत है, तो वो टर्की है. वो जो हमने खिलाफत उस्मानिया में जब हुए तो पाकिस्तानियों ने जो मदद की थी वो उसको आज भी फरामोश नहीं उन्होंने किया. करते हैं उसमें. बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है ना उनका भी सामना करना चाहिए और हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैग्मेटिक होना चाहिए, अमलियत पसंद होना चाहिए. जी, जी. अब सूरत हाल शायद ऐसी रही नहीं. उसकी एक वजह ये है कि वो जो नस्ल थी जो एहसानमंद थी पाकिस्तान की और इस वजह से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो नस्ल अब नहीं रही. वो नस्ल सारे भोग गए. नई नस्ल आ गई ना. अब पुरानी नस्ल ने नई नस्ल को ये सबक तो दिया है. अगर आप आज भी उनके स्कूलों के सिलेबस में देखें तो आपको इलामा इकबाल पर मज़ामीन भी मिलेंगे. अरे वाह. एक दफ़ा बाकायदा वहाँ पे उन्होंने मुझे, बहुत बड़ा स्कूल था, वो विज़िट करवाया तो बहुत फ़ख्र के साथ उन्होंने, हॉस्टल में हम बैठे हुए थे तो खाना खा रहे थे, उन्होंने बुलाया एक बच्चे को कि अपना स्कूल बैग लेके आओ. उन्होंने कहा हम इसलिए कह रहे हैं कि ताकि आपको ये ना लगे कि हमने आपको दिखाने के लिए सिर्फ इस मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो स्कूल बैग लेके आओ. तो वो स्कूल बैग लेके आया, किताब निकाली, तो अंदर इलामा इकबाल पर 1.5 सफ़े का मजमून था. अच्छा, अब हालात जो है ना वो पिछले कुछ अरसे से बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हुए हैं, बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हुए और बदकिस्मती की बात है कि मनफी अंदाज में तब्दील हुए. ऐसी बदकिस्मत कौम है, हम बार 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 ये कह कह के ज़ुबानें खुश्क हो गई हैं हमारी कि जब हम किसी मुल्क में जाते हैं तो हम अपने मुल्क के सफ़ीर बन के जाएं. हमारी कोई एक हरकत हमारे पूरे मुल्क को बदनाम करके रख देती है. अब अंदाज़ा करें कि एक वक्त था कि एक ख़ास पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोजीशन थी तो जीवे जीवे पाकिस्तान ये टर्की में सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड था. तो कुछ अरसा पहले, ये महीना 1.5 महीना पहले आप समझ लें,
टर्की के उसी सोशल मीडिया पे पता है क्या टॉप ट्रेंड रहा है? पाकिस्तान डेफ ऑल, पाकिस्तानियों चले जाओ। वुड यू बिलीव इट? वो टर्की जो हमसे इतना प्यार करता है, अब मसला ये है कि इतनी तेजी से वहां पे हमारे लिए हालात क्यों तब्दील हो गए? क्यों हुए जी? हमारे करतूत, हम अपने करतूत देखने के लिए तैयार नहीं है। मतलब देखें ना, सऊदी अरब में बड़ी तादाद जो थी वो पाकिस्तान से मनशियात ले जाके फरोख्त करते थे, तो कभी हमारी किस हुकूमत को इतनी होश आई कि यार यहीं पे ही इसका कला कमा किया जाए, वरना इसकी जो सजा है वो कई जनरेशंस को भुगतनी पड़ेगी, कई नस्लों को भुगतनी पड़ेगी, कई दहाइयों तक भुगतनी पड़ेगी। अभी ये हुआ है कि ऊपर नीचे वहां पे सोशल मीडिया पे कुछ पाकिस्तानियों ने इस्तांबुल में कुछ जो तुर्क खवातीन हैं उनकी आम सी तस्वीरें लेके उनको इंतहाई बेहुदा अंदाज में पोर्ट्रे किया है, सोशल मीडिया पे वायरल किया है, जिसकी वजह से तुर्क अवाम ने रिएक्ट किया, नंबर 1। फिर वहां पे अगवा बराए तावान के ऊपर तले 2-3 वाकयात पेश आए जिनमें पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। पाकिस्तानियों से पहले वहां पे शामी या अफगानियों के बारे में यह कहा जाता था कि ये यहाँ पे क्राइम में मुलव्वस हैं। अब पाकिस्तानियों का नाम भी साथ इन दोनों अक़वाम के साथ लिया जाता है कि पाकिस्तानी भी क्राइम में मुलव्वस हैं। वहां पे टर्क लोग जो हैं वो इतनी आसानी से पाकिस्तानियों को घर किराए पे नहीं देते, एक अफगानियों को, शामियों को, और अब उन्होंने साथ पाकिस्तानियों को भी करना शुरू। यार ये 80s के अवाइल की बात है ना, 80s की दहाई की, 80 की दहाई के अवाइल की बात है जी जी कि इंग्लैंड में पाकिस्तानियों के लिए एंट्री थी, वीजा की जरूरत नहीं थी होती। याद है ना? आपके सामने देखते 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 किस नहज पे पहुंच गए हैं। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ सोच होती है, कोई एहसास होता है। हमने बिल्कुल सोचना छोड़ दिया हुआ है। हमें चाहिए ये, इसमें होता है ना जी कि बंदा तो एक होता है जिसके कसूर की वजह से बाकी, हमें चाहिए ये कि वो जो एक बंदा है उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो फौरी तौर पे खुद उसको पकड़वा दें। खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट को या टर्किश गवर्नमेंट, वहां पे अगर को आप देखते हैं कि ये हमारे दरमियान एक हमारा ही पाकिस्तानी भाई को क्रिमिनल रास्ते पे चल पड़ा है, खुद उसकी शिकायत कर दें गवर्नमेंट। आप खुद शिकायत करेंगे तो उनको ये एहसास होगा कि नहीं ये अच्छे लोग हैं। जाहिर है टर्किश भी कई ऐसे होंगे ना जी बुरे, तो 100% तो अच्छे नहीं होते कहीं भी अवाम। अमेरिका के अंदर बड़े बड़े क्रिमिनल लोग हैं, ब्रिटिश के अंदर भी हैं। तो अगर हम ये काम शुरू कर देना पाजनैद, तो मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पे संभला जा सकता है। वरना तुम ठीक कह रहे हो कि ये बड़ी खतरनाक सूरत है। पोजीशन ये है कि 1-1.5 माह पहले, सिर्फ 1 महीने के दौरान, 1.5 माह पहले 1 महीने के दौरान ये जो TRC है, जो टेम्पररी रेजिडेंस है, ये पाकिस्तानियों की 90% दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं। 90%, जो कभी शायद 5% भी मुस्तरद नहीं होती थी, 90% दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं। और उसी 1 माह के दौरान 1000 केसेस पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानियों के खिलाफ रजिस्टर कराए। अंदाजा करें, 18,000 से ज्यादा पाकिस्तानी वहां पे, सारे का सारा तो ऐसा नहीं है, उसमें से चंद गंदी मछलियां होंगी ना, 100, 200, 300, 400, 500 होंगे लोग। 18,000 पाकिस्तानी तो जिम्मेदार शहरी है वहां का, लेकिन उन सब की जिंदगियों को अजीरन करने वाले ये चंद दर्जन या चंद 100 अफराद कह लें, वो फ्रॉड का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे। ऐसे ऐसे वाकयात हैं। ये जो मैं आपको अगवा का वाकया बता रहा हूँ, ये नेपाली बशिंदों को अगवा किया था टेक्सम स्क्वायर के पास। हाँ, मैं यार अभी कुछ अर्सा पहले उधर शूटिंग करके आया हूँ। ये मुझे भी किसी ने सुनाया जी कि इधर अगवा हुआ है और उसमें पाकिस्तानी मुलव्वस। आप देखें कि ये भी अब वाकई सही बात है कि वो बड़ा प्यार करते हैं दिल से पाकिस्तानियों को, मगर यार अपना सगा बच्चा, अपना सगा बेटा, अपना सगा भाई अगर वो गलत रास्ते पे चल पड़े तो आप कुछ देर बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि खुदा हाफिज़, चलो शाबाश। मेरा ख्याल है कि किसी मुल्क के जो पासपोर्ट की इज्जत है, हमारे हुक्मरान ये दावे तो बहुत करते हैं कि हम पाकिस्तानी जो ग्रीन पासपोर्ट है इसकी इज्जत बहाल करवाना चाहते हैं, लेकिन वो एकदम नजर भी आने चाहिए ना कि क्या किया है। मेरा ख्याल है कि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो
मतलब टूट के भी हमसे नहीं टूट सकता। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि जुग्राफियाई, तारीखी, मजहबी, माशरती कई हवालों से हमारे रिश्ते इतने जुड़े हुए हैं आपस में कि हम आसानी से वो रिश्ते वो टूटने वाले नहीं हैं, लेकिन हम उनको तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमतों का भी काम है कि बहुत सीरियसली इस मसले को देखें, इसको गवर्नमेंट लेवल पे देखें, जो जहाँ पे अगर जराइम पेशा अफराद है उनके खिलाफ खुद सजा रिकमेंड करें। तरह तरह के वहाँ पे फ्रॉड हो रहे हैं। पिछले कुछ अरसे के दौरान इतने पाकिस्तानी, अजीजी भाईजान द ग्रेट, वहाँ पर बेवकूफ़ बने हैं। उनकी एक पॉलिसी है कि $2.5 लाख दें और वहाँ पे आप कोई जायदाद वगैरह ख़रीद लें या इन्वेस्ट करें, $2.5 लाख आके दें और आपको फौरी तौर पे वहाँ की जो तुर्क शहरियत है वो दे दी जाएगी। अब एक तो वहाँ पे जो फ्रॉडी ऐसे हैं कि ज़ाहिर पाकिस्तानी टक्कर ना जाके प्रॉपर्टी डीलर भी, तो जो पाकिस्तानी यहाँ से गया है उसको क्या पता कि यहाँ का डिफेंस कौन सा है और यहाँ का समनाबाद कौन सा है। उसको पता नहीं कौन सा इलाका दिखा के कह दे कि ये अगले 3 या 4 साल बाद इस्तांबुल में ये यहाँ का डिफेंस है। उन्हें कहना हाँ डिफेंस इसकी शक्ल भी डीगर की। तो 2-3 चिट्टे बंदे लंघते ने कहंदे हुई होना है। अच्छा, उसकी ओरिजिनल जो वैल्यू है वो $1.5 लाख होगी, जो $2.5 लाख में बेच दिया। शहरियत तो उसको मिल गई, लेकिन उस बेचारे का तो कबाड़ा हो गया ना वहां पे, $2.5 लाख उसने डॉलर दे दिए। अच्छा, फिर ये किया जाता है, जो सबसे ज्यादा फ्रॉड देखने में आ रहे हैं कि सिटीजनशिप के लिए पाकिस्तानी वहां पे बने हुए हैं। ये भी सारा काम पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं कि तुर्क शहरियत हासिल करनी है ना, तो आप सिर्फ हमें कोई $10,000 दे दें। $10,000 यार, कहाँ $2.5 लाख और कहाँ $10,000? ये कैसे हो सकता है? वो ले यार फट, वो ये लो $10,000। तरीका क्या कैसे करवाओगे? वो हमारा काम है, हम करा लेंगे। और कैसे करा लोगे बताओ तो सही। और यार बात ये है कि हम यहाँ पे जो है ना अफगानी और शामी महाजरीन जो है ना उनकी फाइलें जाती हैं, वो मेयर साइन करता है और फिर जब मेयर के साइन हो जाते हैं तो फिर सदर भी साइन कर देते हैं बगैर देख के। तो हम $5,000 जो है ना उसको लगाएंगे। और कैसी मतलब तस्वीर, किस तरह ये जाल में फंसाते हैं कि बैठे बैठाए आपको ये यकीन दिला दिया कि इस्तांबुल का मेयर भी $5,000 लेता है, वो प्रेसिडेंट भी लेता है, फलां भी लेता है, और आप सारी बातों में यकीन कर लेते हैं। आप उसको $10,000 दे देते हैं और फिर कहते हैं कि वो फौरन साइन कर देगा। जैसे शामी महाजरीन है, आपको शामी महाजरीन नहीं शो करेंगे, लेकिन उन महाजरीन के अंदर ही आपकी फाइल डाल देंगे और आपके भी साइन हो जाएंगे, आप भी तुर्क शहरी बन जाएंगे। बस जी महीने में, 2 महीने में, बस जी 3 महीने में ऐसा कानून बन जाए ना जी, देखिए ये तो सीधा ना जी मुल्क की इज्जत पे हमले का, मुल्क की से गद्दारी का पर्चा होना चाहिए। और उधर तुर्की हुकूमत से भी कह दें कि इस तरह का कोई बंदा आप पकड़ दें तो वो हमें दे दें। आपने सजा देनी है, आप खुद दें। वो सजा उधर से भुगत के वापस पाकिस्तान आए, उसे फिर अंदर दें और मुल्क के साथ गद्दारी के केस में उसको अंदर दें, ताकि सारी जिंदगी वो अंदर निकाले। फिर तीसरा बड़ा फ्रॉड है जी, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी लालच देते हैं कि आओ जी यहाँ पे टर्की आओ और हमारे साथ मिलके कारोबार करो, शराकत करो कारोबार में। ये कितने $1,000, $20,000 इतने लेरा ले आओ, इतने 4-5 लाख लेरा ले आओ, हमारे साथ मिलके कारोबार करो। हम यूरोप में कारोबार करते हैं। वो 3 महीने बाद पता चलता है कि यही कारोबार करते हैं, पाकिस्तानियों को घेरते हैं। यार कौन सा मतलब हम कैसे अपनी और कहां से अपनी इज्जत बचाएं। हाँ जी, ये तो बड़े सख्त कवानीन बनाने चाहिए इस हवाले से, मुल्क की इज्जत को मद्देनजर। जी बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। जितना मर्जी महंगा कर दे, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास पैसे हैं, उसने तो धोना ही धोना है ना जी। और गाड़ी धोने से तुम्हें मना नहीं कर रहे बाबा। गाड़ी धोने के लिए या तो वो आलात इस्तेमाल करो जिसमें कम पानी इस्तेमाल होता है, या 1 बाल्टी पानी से तुम पूरी गाड़ी धो सकते हो। जरूरी है 2-2 घंटे के लिए पाइप चलाया जाए। बच्चे की जबान पे है कि तीसरी आलमी जंग पानी के मसले पे होगी, लेकिन हम हैं कि पानी के ज़िया का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। आज हस्बे हाल के कटहरे में खड़ा है एक ऐसा नौजवान जो
पानी के ज़िया को बुराई समझता ही नहीं। सर जी जनेद साहब 6 घंटे ने गली च गड्डी खिलार के धोती है। काली गाड़ी थी, काली गाड़ी, पता नहीं उन्होंने चिट्टी कर रहा ही धोई जा रहा है पैप इधर सुट के हमसाया ना गल्लां करन रहा है, कबूतर डाल रहे हैं, हाँ वो पैप चो पानी जाया हुई जा रहा है। 6 घंटे ने गड्डी धोती। मैं बिल्कुल सीरियस रहता हूँ जब मैं रेट पे जाता हूँ ना, मैंने नहीं से बात की ना, मैं गाड़ी भी काले रंग की हो, वही काले रंग की थी ना, इसलिए मैं समझा कि इसको सफेद कर रहा है, इतनी धो रहा है। तो मैं किसी को लिफ्ट नहीं कराता जब मैं रेट पे जाता हूँ। पैप उधर गिरा, पानी निकल रहा है, मैंने पैप को भी नहीं देखा, मैं अपनी ड्यूटी पे रहा हूँ। जब इसने गाड़ी धो के वो गराज में लगाई ना, फिर मैंने जाके इसको गिरफ्तार किया। मैंने कहा मैं सब कुछ देख लिया मैंने। तुम्हारे ख्याल में तुमने कितना पानी जाया किया होगा? सर जितना भी किया है, वाटर पंप हमारा, मोटर हमारे घर की, बिल हमने देना, इसमें आप लोगों को क्या एतराज है? पहली बात यह है कि ये पानी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे बाप का नहीं है, इस मुल्क का है, इस मुल्क के इंसानों का है, इस दुनिया में रहने वाले लोगों का है। नहीं, वो जो हमारे घर का हिस्सा है वो जॉर्जिया का हिस्सा जी है। वो जॉर्जिया का नहीं है। अगर तुम लोग पानी यूं ही जाया करोगे तो पूरी दुनिया में पानी की किल्लत हो जाएगी। यार कल कलां को गवर्नमेंट अगर पानी के मीटर लगा दे और जितना पानी मीटर में से गुजरेगा उतना बिल बनना शुरू हो जाए, जी लोग क्रूली करनी छोड़ दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पानी का ज़िया इतनी बेदर्दी से, खास तौर पे हमारे ये इन सूबों में जहाँ पे पानी जो है वो नलों में आता है, जी बिल्कुल, धड़ाधड़ हम कर रहे हैं कि भाई बिल तो वो एक मखसूस है ना, फिक्स। वो मेरा ख्याल है कई जगहों पे बिजली के बिल में आ जाता है, कई जगहों पे मीटर भी लगे हुए हैं, मगर वो भी ना होने के बराबर। कोई ऐसा कोई सख्ती नहीं है। आप जाके जरा कराची वालों से पूछें जिनको 5-6 हज़ार की गाड़ी लेनी पड़ती है पानी की, टैंकर पूरा, बिल्कुल सही, टैंकर लेना पड़ता है, और वो भी पीने वाला नहीं होता, वो भी दूसरे इस्तेमाल का होता है। मगर वो दूसरे इस्तेमाल में फिर एहतियात करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि पानी भाई मुल लेके। बलूचिस्तान के किसी दूर उफ्तादा गांव की बूढ़ी खातून से पूछे जिसको 1 लीटर पानी हासिल करने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जी जी जी, ये सिंध में पीने वाला पानी बड़ी जगहों पे नहीं मिलता, और इतने जालमाना तरीके से हम पानी बर्बाद कर रहे हैं। यार ये गाड़ी तो खैर बेतहाशा, आप ये जितने भी डिफेंस मॉडल टाउन गुलबर्ग इधर उधर चले जाएं, हाँ जी हाँ जी, ये जितने भी गाड़ियों वाले इलाके हैं, अब तो खैर गाड़ी चुबुर्जी और मजांग में भी पाई जाती है हर घर में। तो वैसे ये जो लोग हैं ना जी, जो खुद गाड़ी को हाथ नहीं लगाते, नौकर धोते हैं जी, सारे लाहौर के जो नौकर गाड़ी धोने वाले हैं ना, वो सवेरे पानी वाला पाइप लगा के 2-2, 3-3 घंटे तक गाड़ियां धोते हैं, इतना पानी जाया करते हैं। और आप चले जाएं कनाडा में जी, जहां पे गाड़ी धोई जाती है घरों के अंदर, वहां पे टैंक बने हुए हैं, बिल्कुल जमीन 2 टैंक बने हुए हैं, पानी जो है वो सारा गाड़ी धो के उस टैंक में जा रहा होता है। बारिश होती है तो पानी टैंक में जाता है, वहां पे वो पानी में से सारा गंद मट्टी नीचे बैठ जाती है, और ऊपर से वो पानी दोबारा इस्तेमाल हो रहा होता है जी, फर्श धोने के लिए या गाड़ियां धोने के लिए या पौधों को लगाने के लिए। सही, बिल्कुल नहीं वो पानी जाया होने देते। और कनाडा वो मुल्क है जहां पे दुनिया का 3 हिस्से पानी उस मुल्क में मौजूद है। बिल्कुल सही। अच्छा, मीठा पानी जो है वो दुनिया में अगर 10 लीटर है ना जी, तो उसमें से 7.5 लीटर सिर्फ कनाडा में है। उसके बावजूद वो लोग जो हैं वो पानी एक कतरा जाया नहीं होने देते। सर जी सिर्फ पानी गाड़ी जब धोते हैं जब जाया नहीं होता, हम लोग जब बेसन के पास भी खड़े हो, शेव कर रहे हो या पेस्ट कर रहे हो या हाथ धो रहे हो, तो बस नल जब जारी है तो जब चल रहा है तो पानी जाया हो ही रहा है वो तो। बिल्कुल 15-20 मिनट अगर खड़े होते हैं हम बेसन के ऊपर, तो जाते ही टूटी खोल लेते हैं, और जब तक उधर से हटते नहीं टूटी चल रही है। एक अंदाजा ये है कि जब हम शेव करते हैं तो 20 गैलन पानी जाया करते ओ जी मैनू तो हजूर 50 गैलन लगता है। अच्छा एक और चीज जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, एक तो ये कनाडा वाली बात तो खैर आम है जी, जाहिर है। दूसरी बात जो सुनाने लगा हूं वो भी कईयों को पता ही होगा। जापान के अंदर मैंने देखा है कि जो है ना जी अपना आप जाते हैं लैट्रिन में, टॉयलेट में, जी जी, आप कम्बोर्ड इस्तेमाल करते हैं या फ्लश इस्तेमाल करते हैं, वो सीट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद
कितना अजीब मैंने महसूस किया कि वो जो है ना जी हाथ धोने के लिए जी छोटा सा बेसन उस कमबोर्ड की जो पिछली टैंकी है उसके ऊपर लगी हुई है टूटी, ताकि आप उधर से हाथ धोएं तो वो पानी जो है वो कमबोर्ड की टैंकी में जाए। वो साबुन वाला पानी जो आपने हाथ धोए हैं वो कमबोर्ड की टैंकी में जा रहा है, वो गिर नहीं रहा। यार दुनिया ने तरह तरह के तरीके इस्तेमाल कर लिए हैं कि पानी की किसी तरह बचत की जाए। इवन जो ज़राअत में पानी इस्तेमाल होता है, ये ड्रिप इरिगेशन जो है पूरी दुनिया में तेजी से फरोग पा रही है। गाड़ियां धोने के लिए टूटियों की शक्ल बदल दी है, अब फोम का पानी आता है। जहां पे 5 लीटर पानी है वहां पे सिर्फ ½ लीटर पानी लगेगा। भाईजान क्या ½ लीटर लगेगा या नहीं लगेगा ये हमारी मर्जी है, हम जितना मर्जी जाया करें, हमें आप रोकने वाले कौन हो? यही तो तुम्हें समझा रहा हूं, वो तुम्हारा पानी नहीं है, वो इस मुल्क का पानी है, पूरी दुनिया का पानी है। मैं तो कह रहा हूं ना कि मीटर लगा देना बिजली की तरह और रेट उसका कर दें उतना जितना फिर गवर्नमेंट को गालियां निकालते हैं लोग, उतना रेट हो तो मैं फिर देखूंगा तुम 2 गिलास हैं तो गड्डी धोएगा। और सर जी जितना मर्जी महंगा कर दे, जिसके पास गाड़ी है जिसके पास पैसे हैं उसने तो धोना ही धोना है ना जी। वो गाड़ी धोने से तुम्हें मना नहीं कर रहे बाबा, गाड़ी धोने के लिए या तो वो आलात इस्तेमाल करो जिसमें कम पानी इस्तेमाल होता है, या 1 बाल्टी पानी से तुम पूरी गाड़ी धो सकते हो। जरूरी है 2-2 घंटे के लिए पाइप चलाया जाए? बिल्कुल सही। 6 घंटे बोला इन्होंने, 2 घंटे कहां से? तो शर्म करो, फिर ज्यादा शर्म करो, 3 गुना ज्यादा शर्म करो। आप जो मर्जी करें, मैं तो रोज गाड़ी धोऊंगा। और रोज गड्डी तू क्यों धोना है? गड्डी दे च बैग कसमा चुकना है। क्योंकि वैसे तेरी दानश्वरी का फिटे क्या बात कर रहे हो तो गड्डी रोज एक दिन धोली अजीजी भाई, केड़ा गड्डी उनके दिल जाना है? भाई यार वही तो से बता रहे हैं, तुम आगे से पुठी बात ना कर दो। भाई जी जैसे पा जुनैद कह रहा है कि गड्डी आप रोज धोए, दिहाड़ी में 3 बारी धोए, बाल्टी पानी की भरें, वहां से अपना कपड़ा और स्पंज लें जी, आराम से उसके टायर टूर धो के गड्डी के ऊपर बेहतरीन उसको साफ कर लें। कोई बात नहीं, हम आपको बिल्कुल नहीं मना करेंगे, बल्कि तुसी सारी गली ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਇਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 3rd ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ये सब कह रहे पूरी दुनिया का पानी, वो तुम्हारा पानी नहीं है, सबका पानी है, मेरा भी पानी है उसमें। अच्छा फिर ये सिर्फ गाड़ी बाहर गड्डी ही नहीं धोप रही होती, घर के अंदर भी जो जिन घरों के अंदर फर्श वगैरह ये वो धोए जाते हैं, वो भी इसी तरह पानी वाला पाइप लगा के धड़ाधड़ पानी जाया कर रहे होते हैं। फिर छिड़काव पानी का करने वाले थे जी, आपने अब पानी के छिड़काव से ही अगर ठंड पैदा करनी है तो वो तो फिर तुसी गर्मियों के अंदर आप 4 घंटे भी छिड़काव करते रहे तो वो नहीं ठंड पैदा होगी। और मैंने तो कई ऐसे घर वाले भी देखे हैं कि घर की दीवारों के ऊपर भी पानी मार मार के तो ठंडा कर रहे होते हैं रात को सोते वक्त। या अल्लाह, इतना कौन सा आपको गर्मी का स्यापा पड़ गया है? बेतहाशा इस मुल्क में पानी जाया हो रहा है और बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। और हम उसी तरह जिस तरह हम दूसरी प्रॉब्लम्स जब हमारा सत्यानाश कर देती हैं तो हम चीखते हैं ना, अल्लाह ना करे पानी वाले मसले में भी हमारे साथ यही होना है। वो दीवारों को शायद लोग इसलिए पानी देते हैं कि उन्होंने सुनने में गलती की है, कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, उन्होंने सुना कि दीवारों के भी लॉन होते हैं। नहीं शायद अपने लोग दीवारों के कन्ना च पानी पा के बोला करन। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। रनिंग के लिए रिक्शे उन्होंने कराए हुए हैं। सर ये प्लग में कचरा आ गया ना, ये बंदा रन आउट हो सकता है। नहीं मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो अंदर सवारियां बैठी हैं उन्होंने चक्कर चढ़ जाने ने। अजीजी भाई स्कोर 3 बनने ने ते किराया 150 पै जाना। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਣਾ। अच्छा भाईजान, तस्वीरों और वीडियोस में आपको रनिंग बिटवीन द विकेट्स दिखा रहा हूँ, ऐसी कमाल की रनिंग बिटवीन द, ये दिखाएं देखिए नहीं होगी आपने गौरी साहब, किसकी? ये देखें, मियां साहब की और आसिफ साहब? देखें तो सही, शॉट तो मार दिया। बंदे नजर नहीं आ रहे, रिक्शे कर रहे हैं।
रनिंग के लिए रिक्शे उन्होंने कराए हुए हैं। हाय हाय। बहुत अच्छे। सर ये प्लग में कचरा आ गया ना, ये बंदा रन आउट हो सकता है। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जी अंदर सवारियां बैठी हैं उन्होंने चक्कर चढ़ जाने ने। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਭਾਈ ਸਕੋਰ 3 ਬਣਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ 150 ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਣਾ। देखो जरा पाकिस्तानी है ना, क्या क्या तमाशे करते हैं हम। ऐसे ही वो शुगल कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं। आहा। बड़ी बात। और मैच खत्म होवे ते लड़ पैन भाई जी 3 सवारियां ला रक्शा है, एक स्कोर दियां 3 गिनो। ਅਸੀਂ मैच हार गए क्यों? इसे पेट्रोल खत्म हो गया। मैच मुकन तो बाद रक्शे वाले कह रहे होणगे भाई जी ये इनाम बाद चो वंडना, पहले साडा ते 750 रुपया दियो। पता लगा जी अंपायर ने चलान कर दिया, क्यों? कहते जी शॉर्ट रन था। नहीं दिनेश साहब, सिंगला दुखे तो हो रहे थे, चौका छिका कितने है? अच्छा अगली वीडियो बहुत ही क्यूट है, ये देखें जी। बिल्लियों का इनहमाक देखें आप। ओए। टॉम एंड जेरी देख रही हैं। सर जी ये अपना फैमिली शो देख रही हैं। हाँ, कुछ ज्यादा मुश्किल बात तो नहीं। इसी तरह है जैसे थैला भाई अपनी शादी की फिल्म लगा ले। सर ये टॉम से सीख रहे हैं तरीके के जेरी को कैसे पकड़ना। ये बड़ी बात है। और ये 8वीं किस्त देख रहे हैं, रेगुलर शौक से देखते हैं। ओ भाई जी कोई ऐसी गल नहीं हैगी, जो मालिक है ना बिल्लियों का जी जी। वो इनके लिए दूध लेने गया है और कहता उन्नी देर तुसी देखो बै के शो मैं मार्केट चो दूध लेके आया। आरे लगा के गए। हाँ जी, बिल्लियों को लगी हुई है भूख, वरना वो बड़ी बदतमीजी से फिर म्याऊं म्याऊं करती है। वाह। जिस तरह बच्चा रो रहा हो तो फीडर बनाने मामा जाती है ना, तो वो उसको अपना मोबाइल दे जाती है, फिर बच्चा रोता नहीं। ये वो हुआ है। बहुत अच्छे। बैठियां सारियां इंज जिवें स्टैंड ते लाइयां ने। अच्छा जी एक और वीडियो है, उसको बहुत मैं रिस्की वीडियो कहता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये सिलेंडर्स हैं। जरा परफेक्शन देखें वो कैसे लोड कर रहा है। एक नीचे से बंदा फेंक रहा है, वो सिर्फ पाँव टच करके उसको तरतीब से अंदर उतार। सर वो फेंक भी रहा है और वो सेट भी कर रहे हैं, यहाँ तो उठाया भी नहीं जाता सिलेंडर। नहीं नहीं, ये प्लास्टिक के होंगे ना, प्लास्टिक के सिलेंडर भी होते हैं। हाँ, यस, ये देखो देखो ले वापस ही आ आ गया। जाता जी। वो नहीं वो अपने करतब दिखा रहा है। एक्चुअली जो नीचे है ना, इसने क्रिकेट खेली हुई है, ऊपर जो है वो फुटबॉल का प्लेयर है। हाँ बहुत अच्छे। हेलो देख भी पे आए। चले मेरे ख्याल में बस करें गोगा जी, कितना सिलेंडर लगता है आपकी रोटी को? बाबू जी पूरे महल्ले के सिलेंडर ने। अच्छा जी अगली वीडियो भी आपके मतलब की है। ये देखें गोगे पर यहाँ प्लेटा। हाँ एक बात है, इस बंदे को गोगा कहेगा ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, बेशक मेरी जान ले ले। ठाकुर चंगा होवे तो उतो डिशा ला के दे देवे। अच्छा जी एक और बिल्ली देखें। ये वाह जी। लो और पहली तो ठीक सी, यही फ्लाइट लेट हो जानी। ये पुठी टुर पड़ी है उल्टी साइड। वो वापस ये देखो ना, ये तो ठीक जा रही है। सर भाਵੇਂ डॉक्टर ने कहा होवे रोटी तो बाद 60 कदम टुरया कर। ट्रेडमिल है उसके लिए यार वो। वैसे जानवरों के लिए ट्रेडमिल हैं। अच्छा हाँ सारा दिन सफर करके उठी होती है। ये दिल करे घर जाके अपने बलूगणिया नु कवे इथों निकल चलो, इथे जे न जे पुत्र मैं किन्नी देर टुरदी रही हां ते उत्थे दी उत्थे ही। नाज़रीन ये था आज का अस्पताल, और आज की छोटी सी बात ये कि अगर आप खुद को अमीर महसूस करना चाहते हैं तो उन नेमतों का शुमार शुरू कर दें जो कुदरत ने आपको मुफ्त में अता की हुई। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।